Okay, I hope all of you are aware. We are live now, and I hope all of you are aware about this class. Thus, in this class, we will be discussing this book, Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leong. If you have bought it online, the color now had changed, so you have probably got a black covered book. This is a PDF that I have shared in some of the groups, and we will be using this book in this class. And the attempt should be to read this book line by line as I have read it, where I have found difficulties and how we can overcome those things. मेंस में आंसर कैसे लिखें. एक जो बहुत अच्छी चीज है, very good thing about this book is the simplified diagrams that have been used in this book, and we will try to use these diagrams in our answers. So this is the first class, and this first class is open for all. Probably this is going live on YouTube as well, but going forward, this is a separate paid program. Basically, this is for the students of personal mentorship batch, where I teach all the reference books. So we have read Lakshmikant recently, and now we are reading the Leong. And for those students who are not enrolled in personal mentorship batch, the fee they have to pay 999 rupees to get complete access to this. The format of these classes will be that we will start somewhere around 7:30, and if the time allows, probably we can even consider starting it as 7. So 7 or 7:30 as the time goes by, we will decide based upon your opinion and all. And we will try to have at least 3 hours classes a day. And generally, it takes about 50 hours to teach entire geography. This book also we will try to cover in about, I think I can cover this book because some of you already have basic understanding. So we will try to cover this book in 50, 60 hours. Let's see how it goes. So 15 classes, I think we will be 15 to 20 classes we will be taking for this. And that's the plan for now. Classes will be on regular basis, daily classes. No gaps in between, other than probably on Sunday. That will depend how fast or how slow we are. Okay. Those who have not enrolled yet and want to get enrolled, you can UPI on my number 8368481944 and send me the screenshot. I will add you into the group. ठीक है, स्टार्ट किया जाए. Sure. So how many of you, just to get an idea about what kind of views we have, how many of you have already completed your NCERT geography classes? NCERT geography कितने लोगों ने कर ली है? So keep your hands up. Primal, Vaidehi, Aryan, Neha, Sanket, Prerna, Nikhil, Vamshi, Love, Palak, Kavindra, Parna, Pooja, Raghavendra, Anjali,
अदिति, रमेश, सुदीप्तो, अभिषेक, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, अरे ऐश्वर्या का नहीं हुआ है अभी। अच्छा, दोनों ऐश्वर्या का नहीं हुआ है। हम्म, ठीक है। So I think about half of you have done it. It will be a difficult task for me then. ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी किया है फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। We will do it in this class. You have to go and watch some of the videos from there as well, as I will be guiding you in between. ठीक है. So in this book we have about 25 chapters if you see, and this is divided into two groups. First is physical geography, and the second part is weather, climate, and vegetation. So you can call it human geography. So in physical geography, we have 12 chapters. In some chapters, you will find they're quite in detail, like these chapters like limestone and landforms and desert landforms. They're like very, very detailed. We do not need to go in such details. तो जहाँ जितना जरूरत होगा, I will tell you कितना याद रखना है. And in this book, many of the references, examples which they have given are examples from Europe और throughout the world. तो हमारे लिए उतना भी जरूरी नहीं है उन सारे ऑब्सक्योर टू स्टडी ऑल दोज ऑब्सक्योर लोकेशंस एंड नो देयर नेम्स एग्जैक्टली. We will try to memorize as much as we can. If we can't, don't have to worry. So बहुत ज्यादा फोकस फैक्ट्स पे नहीं रख के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू फाइंड अ वे so that we can write answers in the exam. ठीक है. So the first chapter is physical geography. Any questions, anyone, before we start? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ. We are all set. बढ़िया. So those who have enrolled in the batch, I have not added you in any group today. मैं आज शाम तक ऐड कर दूंगा तुम लोगों को अलग ग्रुप में. The first chapter is about Earth and the universe. इसमें बहुत कुछ important अपने लिए नहीं है, ठीक है. These are the very basic information. How this is an old book again, so they have given that there are 9 planets. By now, I hope all of you understand, all of you know that there are 8 planets. Pluto has been removed. तो तुम्हारे नए बुक में all of you have your books. So if you have GC Leong, I will advise you to keep your book by your side. और साथ साथ उसमें टिक कर जो भी मैं यहाँ मार्क करता जाऊँ वहाँ मार्क करते चलना है. ठीक है. तो मैं इन सब चीजों में नहीं जा रहा हूँ. जो जरूरी है उसको सीधा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है विच यू शुड राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट लिखो. वीनस. देखो कई बार कंफ्यूजन होता है एग्जाम में अर्थ ट्विन को लेकर. हम लोगों को ऐसा लगता है
Most of us think like that because we are planning to colonize Mars, and Mars is very similar to the Earth in terms of its chances of the survival of human or any kind of life form. But Earth's twin is not Mars, it's Venus. काफी कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में गलती कर सकते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट बस ऐसा लिख लो, Earth's twin is Venus. ठीक है। संकेत करें कि प्लीज एक्सप्लेन सिलेबस लाइक यू डिड फॉर हिस्ट्री। सिलेबस एक्सप्लेन करते हैं। चलो सिलेबस एक्सप्लेन कर देंगे ब्रेक के बाद वाले क्लास में। अब स्टार्ट करते हैं इसको, तो थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, वीनस इज द अर्थ्स ट्विन्स, इट्स नॉट मार्स। ठीक है। Why it is called Earth's twins? Because of their close proximity to size, mass, and density. ठीक है, it's Earth's twins because the size, the mass, and the density of Venus is very similar to Earth. ठीक है, हो गया ये। Origin of Earth मैं बताऊंगा बाद में। Mars, Jupiter is the largest planet, I hope all of you know, and this we have again discussed in the NCRTs. NCRT में वो एक टेबल बना हुआ है, अगर तुम लोगों ने देखा है, if you will go and see in class 6 वाले में भी है और 11th वाले में भी है, some properties of some specific planets, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेना है, विच इज द डेंसिएस्ट, डेंसर, विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट, इसमें कितने स्टार्स हैं, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों को एक बार यू शुड गो थ्रू वन से। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा अगर बता दूं तुम लोगों को तो हम्म, लिखो तो, लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग दो, planets, satellites and other bodies. Planets, satellites and other bodies. Planets, satellites and other bodies. Planets are divided into two groups. Planets के दो ग्रुप हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा है जोवियन। टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन। अर्थ के जितने भी प्लैनेट है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। सो अप टिल मार्स, इन सबको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इसके बाद वाले जो प्लैनेट्स हैं इसको कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स विच रिजेंबल्स अर्थ आर टेरेस्ट्रियल, जिन पे टेरेस्ट्रियल जो कि सॉलिड है ना, वो टेरेस्ट्रियल है, इनका जो सरफेस है इट्स सॉलिड। और जो planets, the planets which resembles Jupiter, they are called jovial, and their surface is made up of gases. बहुत डेंस सरफेस उनका नहीं है। लिखो, टेरेस्ट्रियल में लिखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में लिखो, दे आर लाइक अर्थ, दे आर लाइक अर्थ, लाइक अर्थ, rocky, their surface is rocky, they face more solar winds, solar winds. In some class I will be discussing what is solar wind. For now just write it, solar winds. सूरज से ऐसा कभी कभी
बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्लेयर निकलता है, उसको सोलर विंड्स कहते हैं. I will discuss that. But for now, this side they will face strong solar winds because they're closer to the sun, so they will face strong solar winds. They will be smaller in size and denser. Smaller, denser, and less number of satellites. Smaller, denser, and less number of satellites. इनमें satellites बहुत कम होंगे. Dense होंगे, but they're smaller in size, but they are heavier. इतना याद रखना है. ठीक है. ये क्या होगा? They are smaller but denser. Density क्या होती है, कोई बताएगा? How do we calculate density? What is the formula of density? Mass by volume. यानी कि जो चीज ज्यादा डेंसर है, व्हाट डज दिस मीन? उसका मास ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है? मास ज्यादा है कम वॉल्यूम में. ठीक है. तो जैसे कि आयरन, 1 किलो के लोहे का तुम अगर एक बोलो तो इट विल बी मोर डेंसर देन 1 kg ऑफ वूल. विथ 1 किलो वूल, वूल will take a lot of area, but the mass will be same. तो उस हिसाब से समझ सकते हो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको डेंसिटी समझने में काफी समस्या होती है. सो दीज आर डेंसर. दीज इसमें और फीचर्स लिखो. टेरेस्ट्रियल में टेम्परेचर जो होगा हाई होगा. टेम्परेचर इज हाई. रिंग्स आर एब्सेंट. टेम्परेचर इज हाई, रिंग्स आर एब्सेंट. इनके आसपास कोई रिंग नहीं होगा. जैसे सैटर्न में रिंग दिखता है, यूरेनस में रिंग दिखता है, वैसा रिंग नहीं दिखेगा. टेम्परेचर इज हाई, रिंग इज एब्सेंट. रोटेशनल स्पीड इज स्लोअर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रोटेशनल स्पीड इज स्लोअर. गलत कर सकते हो एग्जाम में, तो अच्छे से लिखो इसको, स्टार देकर हाईलाइट कर लेना. रोटेशनल स्पीड इज स्लोअर. रोटेशनल speed is slower. If anybody is from South India and if you are not able to understand if I'm saying anything in Hindi, you ask me then and there, and I will repeat it in English. So rotational speed is slower. What does this mean? They will be rotating at a slower speed. ये सारे प्लैनेट्स हैं काफी तेजी से रोटेट करते हैं. We will be reading about rotation and revolution. तो इनका जो रोटेशन है, रोटेशन हैपेंस ऑन देयर ओन एक्सिस. तो ये अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से स्पिन नहीं कर रहे होंगे. दे विल बी रोटेटिंग एट अ स्लोअर स्पीड, बट दीज planets will be rotating at a very high speed. Rotation is slower. जोवियन में इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, नहीं तो सीधा सबका उल्टा कर दो. अगर तुमने ऐसा चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, तो यू कैन. बताऊंगा सिमरन, रोटेट ये रिपीट कर तो कोई कोई बात नहीं, बस इतना लिख कर उसको और स्टेरिंग में डाल दो कि रोटेशनल स्पीड इज स्लोअर हियर. ठीक है. नाउ रिवर्स एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन फॉर टेरेस्ट्रियल इन जोवियन. तो जोवियन में क्या होगा, यहाँ पे ये था लाइक अर्थ. जोवियंस आर लाइक जुपिटर. इधर लिख लो लाइक जुपिटर और जुपिटर लाइक. दे वर रॉकी. दीज प्लैनेट्स आर गैसियस. ये रॉकी हैं, ये गैसियस हैं. यहाँ पे सोलर विंड्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. हियर सोलर विंड्स आर लेस. तो यू कैन राइट लेस सोलर विंड्स. Size will be high
or bigger, larger size, density will be less, will be very less dense. Here they have less number of satellites. Here you will have more number of satellites. Temperature is less, of course, because they are very far away from the sun. The rings will be present here. So in many planets, you will find rings. Now, again, one very important thing, write it under sterics. They have a thick atmosphere. They have a thick atmosphere. एग्जाम में गलत करोगे. Normally when we think of atmosphere, we think of like oxygen और ये वो. तो in exam there can be a slip. सोचने में कि नहीं एटमोसफियर तो सिर्फ अर्थ में होता है और अर्थ जैसे प्लैनेट्स में होता है. But these planets have thicker atmosphere because they are made up of gases. So up to very high extent, they have gases, thousands of kilometers of large atmosphere you will find in these planets. So they have very thick atmosphere. And their rotational speed is faster. They are rotating at a faster speed. Rotational speed is faster. लिख लिया इतना. अब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बता रहा हूं ऑफ these individual planets which can be asked in exams. This part is clear to all of you. It's very basic. कोई प्रॉब्लम नहीं है other than that rotation वाला, वो मैं समझा दूंगा. ये याद रखना है, ठीक है. ये क्यों थिक है that also I will explain later if we need that. But for now इतना याद रखो कि इनमें थिन एटमॉस्फेयर है और इनमें थिक एटमॉस्फेयर है. लिखो मरकरी, नो एटमॉस्फेयर. मरकरी में कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं. क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर? बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर्स. सोलर फ्लेयर्स इतने स्ट्रांगली यहाँ पे हिट करते हैं कि दे हैव ब्लोन अवे ऑल द एयर दैट वाज देयर ऑन मरकरी. सो मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर because of very strong solar winds. Because of very strong solar winds. Venus का तो मैंने बताया, queen of the earth. Venus में और लिखो hottest body in the solar system. Venus क्या है? hottest body है. कोई बताएगा why it is hottest? Anyone? Why Venus is the hottest planet? Mercury is the closest, but Venus is the hottest. हाँ आर्यन बताओ. Wait, let me unmute you. हाँ. इसका साइज जो है वो बड़ा है मरकरी से. नहीं नहीं नहीं. Some people are raising their hands. Let me see. कौन बता रहा है? Faces the sun more while revolving. अरे पूजा इतना गड़बड़. Mass is very high, close to the sun, but Mercury is closer to the sun. Yes. So some of Aparna is correct. उससे पहले भी किसी ने कहा था, I think CO2 किसी ने बताया था. किसने कहा था? Yes, संकेत. Good. तो Venus पे क्या है ना? Venus has thick presence of carbon dioxide और other greenhouse gases कह सकते हैं. Because इस पे कोई गैस नहीं है, so it cannot trap the
solar energy, but Venus traps the solar energy which keeps it warm. Now we have discussed about greenhouse gases and how it works. In future also we will be discussing even in this class. अभी बस याद ये रखना है कि because of the presence of CO2 or greenhouse gas, the Venus becomes very hot. It's the hottest planet in the solar system, not in the universe. Solar system में hottest planet है ये. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. लिख लो, ये लाइन लिख लो. हॉटेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम, CO2 हियर इज 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे 90% जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ CO2 का बना हुआ है. सो इट होल्ड्स द टेम्परेचर. अभी रिसेंटली यहाँ पे फॉस्फीन गैस डिस्कवर हुआ है. लिख लो फॉस्फीन, PHOSPHINE. फॉस्फीन गैस वाज रिसेंटली रिपोर्टेड. Why the discovery of phosphine is so important? Phosphine is a bio indicator. Phosphine क्या होता है? बायो इंडिकेटर होता है. बायो इंडिकेटर मीन्स if there is a phosphine, the chances are that some form of life is existing in that region. Phosphine is a bio indicator. ठीक है. एक और बहुत ही मजेदार ये है कि लिखो Venus is tilted almost 180 degree on its axis. Venus is tilted almost 180 degree on its axis. देखो सारे planets, I hope all of you understand what is the axis of the Earth or axis of any planet. Axis is the line around which anything rotates. तो अर्थ का भी अपना एक्सिस है, सबका अपना अपना एक्सिस है. देखो वंशी ने कब भेजा था, देखते हैं समझो. ये मान लो एक्सिस इज पासिंग राइट थ्रू दिस कप, and if this cup is rotating on its axis it will be rotating like this. ठीक है, इस तरीके से रोटेट होता रहेगा. अगर इसका एक्सिस अब जब इस तरीके से मान लो रोटेट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है? इफ आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस, व्हाट कैन वी कॉल दिस? क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? कैसे पता करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? देखो ये कंफ्यूजन आज क्लियर कर लो फॉर वंस एंड ऑलवेज. व्हेन यू हैव टू चेक कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझ लो इसको. तो ये इसका एक्सेस है. यू हैव टू लुक इट फ्रॉम द टॉप. तुम इसको टॉप से देखोगे ऐसे, इट इज रोटेटिंग. अगर मैं टॉप से देखूं तो क्या देखूंगा? ये मेरा एक्सिस है, माई थंब इज माई एक्सिस एंड रोटेशन इज दिस कर्ल ऑफ माई हैंड इज द रोटेशन. इस तरीके से रोटेट हो रहा है. ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है. तो अगर मैं इस कप को फिर ऐसे करके देखूं तो आई कैन सी कि दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस. मेरी तरफ से अगर देखो तो, तुम्हारी तरफ से देखो तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है. नाउ क्लॉक कैसे रोटेट होता है? नॉर्मल क्लॉक का रोटेशन अपना इस तरीके का होता है. क्लॉक्स रोटेट लाइक दिस. नाउ if if this is my cup
and in my hand this cup is rotating like this. मैं इसको अगर इधर से देखूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है, यानी कि my cup is rotating like this from my view, from my perspective. So this becomes anti-clockwise rotation. अगर मैं कप को ऐसे रोटेट करना शुरू कर दूं तो it will become clockwise rotation. ये clockwise हो गया, जो क्लॉक की तरह रोटेट करे, और जो क्लॉक के अगेंस्ट रोटेट करे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. तो फर्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड कि एनीथिंग हाउ एनीथिंग इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पहले हमको एंगल ऑफ उसका एक्सिस देखना पड़ेगा. नाउ हम सीधा क्यों नहीं कह रहे हैं कि इट्स रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? व्हाई वी आर यूजिंग दीज कंफ्यूजिंग टर्म्स एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि देखो, हम अर्थ पे रह रहे हैं, वी हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. बट इन एन ओपन स्पेस, सोचो, इमेजिन करो कि यू आर इन स्पेस. इन स्पेस देयर इज नो लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट साउथ, वहां तो ऐसा कुछ है नहीं. You cannot say कि okay, it's coming from east or coming from west, it's rotating from east to west. There's no sun, no light, so नहीं कह सकते. तो इसीलिए ऐसी बॉडीज को समझने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज, रोटेशन या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू शो करने की कोशिश करते हैं. अब वीनस को समझने की कोशिश करते हैं. देखो, नॉर्मली अगर अगर ये, अच्छा, इस कप से ही फिर से देखते हैं. अगर ये नॉर्मल एक प्लैनेट होता जिसकी एक्सिस इस तरीके से है एंड इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो जैसा अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वैसा रोटेशन होता. लेकिन हम इसकी एक्सिस को अगर इफ वी टिल्ट द एक्सिस बाय 180 डिग्री, नाउ इफ यू विल सी इट फ्रॉम द टॉप, तुम्हें क्या दिखेगा? इट्स रोटेटिंग लाइक दिस. तो एक लाइन लिखो पहले और फिर मैं समझाता हूं कि क्या होता है. Venus is tilted almost 180 degree on its axis. Rotates, that's why it rotates east to west. It rotates east to west, which is called retrograde rotation. Which is called retrograde rotation. Retrograde rotation. Venus जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है. Venus rotates from east to west. Normally, all other planets you will see they rotates from west to east. Earth also rotates from west to east, but Venus rotates from east to west because its axis has been tilted by 180 degree. ठीक है. Venus rotates east to west, retrograde rotation. West to east वाले को कहते हैं prograde rotation. Prograde rotation. नेक्स्ट लिखो अर्थ. अर्थ अर्थ तो सबको पता है, ब्लू प्लैनेट. The important point here is कि अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये क्या है? डेंसेस्ट है, लगता नहीं है
कंफ्यूज नहीं होना है, जुपिटर इज नॉट द डेंसेस्ट, इट्स द बिगेस्ट, डेंसेस्ट planet is अर्थ। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस। मार्स इज द रेड प्लैनेट। जुपिटर, देखो इफ यू विल सी द इमेज ऑफ जुपिटर recently, image of Jupiter was sent by जेम्स वेब्स टेलीस्कोप एज वेल। जुपिटर को देखोगे तो उसमें तुम्हें दिखता होगा ऐसा रेड रेड स्पॉट्स दिखते हैं। अगर इफ यू हैव एवर सीन एन ओरिजिनल पिक्चर ऑफ जुपिटर, गूगल कर सकते हो जुपिटर का इमेज, तो वहां पे तुम्हें बहुत ऐसे रेड स्पॉट्स दिखते हैं। देखा है किसी ने? दीज रेड स्पॉट्स आर ह्यूज साइक्लोन्स सिस्टम। वो इतने बड़े साइक्लोन्स हैं दैट वी कैन सी इट फ्रॉम अर्थ। साइक्लोन क्या होता है दैट वी विल रीड लेटर, बट अभी लिख लेना है ऐसा कि द रेड स्पॉट्स आर ह्यूज साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। द रेड स्पॉट्स ऑन जुपिटर आर ह्यूज साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। नेक्स्ट इज सैटर्न। लिखो, you cannot sink Saturn into what? In water. You cannot sink Saturn in water. मजेदार बात है ये बहुत। Saturn is the lightest planet. Saturn क्या है? Lightest planet है। Its density is even lower than water. तो if you have a large pool, ocean, जहाँ पे तुम सैटर्न को डिप कर सको, तो सैटर्न विल नॉट डिप, लाइक सैटर्न विल नॉट ड्राउन, इट विल कीप फ्लोटिंग, इट्स डेंसिटी इज सो लेस। ठीक है, सो सैटर्न इज, लिख सकते हो, इट्स द लाइटेस्ट प्लैनेट एंड इट्स डेंसिटी इज इवन लेसर देन density is even lesser than water. नेक्स्ट, इसमें रिंग्स वगैरह है, ये तो पता ही है हम अपने को, तो सैटर्न हैज रिंग्स। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस, इसका जो एक्सिस है वो 90 डिग्री टिल्टेड है, तो लिखो कहते हैं कि यूरेनस जो है वो रोल करता है, इट रोल्स। ये रोटेट नहीं करता, रोल करता है। जैसे यू माइट हैव सीन अ ड्रम ऐसा, या ड्रम कैसा रोटेट रोल करता है। एक एक मान लो कि ये मेरा बॉटल है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, बट इफ इट इज tilted at its 90 डिग्री एंड इट स्टार्ट रोलिंग लाइक दिस ना, तो यूरेनस इसी तरीके से सन को रोटेट करता है, ऐसा रोल करता हुआ। म्यूट कर लो। सो यूरेनस जो है वो रोल करता है बिकॉज इट इज tilted 90 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, एंड इफ आई एम द सन, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो इट फील्स लाइक इट्स रोलिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, so Uranus rolls because it's tilted 90 degree on its axis. 90 डिग्री एक्जेक्टली नहीं है, 97.8 डिग्री है। नॉट वेरी स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, लिख सकते हो। इट रोल्स
as it is tilted on the axis of rotation by 97.8 degree. It rolls as it is tilted on its axis of rotation by 97.8 degree. नेपच्यून नेपच्यून के बारे में लिख लो. It's the only planet not visible through the naked eyes. हम यूरेनस तक को यहाँ अर्थ से नेकेड आई से देख सकते हैं, बट नेपच्यून इज द ओनली प्लैनेट विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ बाय द नेकेड आईज. ठीक है. तो ये हो गया अपना सोलर सिस्टम. आगे बढ़े. So I have given you much more information than it is in this book. Go through it once. जल्दी जल्दी पढ़ लेना बस, और कुछ खास नहीं है. एक दो चीजें और इसमें. ठीक है. देखो यहाँ बुक में दो वर्ड यूज किए हैं इन्होंने, पेरिहीलियन एंड एफिलियन. इसको ऐसे समझ लो, दिस इज सन एंड द planets rotates in an elliptical orbit. सन के अराउंड जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं. दे डू नॉट रोटेट इन circular orbit. So whenever they're rotating in an elliptical orbit, there will be points or places where they will be very close to the sun. जब भी वो सन के क्लोज होंगे, मतलब यहाँ पे सन है अगर ये, so this point will be very close to the sun. तो ऐसे हम याद रखते हैं, पेरी मतलब पास, नजदीक है तो उसको बोलेंगे पेरीहीलियन. व्हेन द सन इज क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट, so this is the perihelion position. And when it is at the farthest position तो उसको कहेंगे aphelion. ठीक है. when sun is the farthest, ये जानना चाहिए. this is there for all the planets, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है. हर प्लैनेट का अपना एक पेरिहीलियन का टाइम होगा, अपना एक एपहीलियन का टाइम होगा. तो इस बुक में प्लेटो के भी कंसीडर कर लिया, बट दिस इज नाउ नॉट डन देयर इन द लिस्ट. नेक्स्ट बहुत ही मजेदार पॉइंट है अबाउट शेप ऑफ द अर्थ. नाउ all of you would have heard these stories that initially people used to think that earth is flat, etc, etc. What is most fascinating is कि when when human would have progressed so much, or the science would have progressed so much, कि human were able to find that earth is not flat, it is a sphere, or it is
सर्कुल, स्फेरिकल, ज्वाइड, व्हाटएवर इट इज, लेकिन फ्लैट नहीं है। ये डिस्कवर कब आदमी ने किया होगा, और उसके लिए उसके पास कैसे इक्विपमेंट हुए होंगे? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डिस्कवरीज फॉर मी. When we think of experiment and research, we think of big equipments, tools, extraordinary calculation, scientific knowledge. लेकिन कैसे about 2000, more than 2000 years ago, one person with very little means, just through his sharp intellect and excellent observational skills, was able to say with conviction that Earth is not flat. Not today, 2000 years ago. सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कि कैसे एक डार्क एजेस आता है पूरा यूरोप में, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है दैट ऑल यूरोपियंस यूज टू थिंक दैट अर्थ इज फ्लैट. In Europe, in Roman civilization, it was convincingly proved that the earth is not flat, not today, but more than 2000 years ago. इंडिया में भी सिमिलर डिस्कवरीज हो रही थी. तो ये बोलना कि आदमी को पता नहीं था, इट्स एन ओवर एग्जेग्रेशन, एंड प्रोबब्ली दैट नॉलेज वाज लॉस्ट समवेयर इन सम ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. बट ऐसा नहीं कि आदमी को आगे सीधा पता चलता है गैलीलियो के टाइम में कि अर्थ इज नॉट फ्लैट. देखो, एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिखा रहा हूं तुम लोगों को. आई लव दिस एंड आई होप यू विल लव इट टू. सो 5 minutes video. Be patient and watch this. There was once a time when our little planet seemed immense, when it was the only world we could explore. Its true size was first worked out in a simple and ingenious way by a man who lived here in Egypt in the 3rd century BC. This tower may have been a communications tower, part of a network running along the North African coast by which signal bonfires. It is audible to all of you. आवाज समझ में आ रही है तुम लोगों को? थोड़ा सा ध्यान से सुनाओगे. इट्स वेरी ओल्ड वीडियो, सो बी लिटिल पेशेंट. सबटाइटल्स नहीं है. Were used to communicate messages of state. It also may have been used as a lighthouse, a navigational beacon for sailing ships out there in the Mediterranean Sea. It is about 50 kilometers west of what was once one of the great cities of the world, Alexandria. In Alexandria at that time, there lived a man named Eratosthenes. One of his envious contemporaries called him Beta, the second letter of the Greek alphabet, because he said Eratosthenes was second best in the world in everything. But it seems clear that in many fields, Eratosthenes was alpha. He was an astronomer, historian, geographer, philosopher, poet, theater critic, and mathematician. He was also the chief librarian of the great library of Alexandria. And one day, while reading a papyrus book in the library, he came upon a curious account.
position of the sun, simple, everyday matters of what possible importance might they be. But Eratosthenes was a scientist, and his contemplation of these homely matters changed the world, in a way, made the world. Because Eratosthenes had the presence of mind to experiment, to actually ask whether, back here, near Alexandria, a stick cast a shadow near noon on June the 21st. And it turns out, sticks do. An overly skeptical person might have said that the report from Syene was in error, but it's an absolutely straightforward observation. Why would anyone lie on such a trivial matter? Eratosthenes asked himself how it could be that at the same moment, a stick in Syene would cast no shadow, and a stick in Alexandria, 800 kilometers to the north, would cast a very definite shadow. Here's a map. I hope all of you are following. समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है अभी तक? So एरेटोस्थेनस जो है, इसको ऐसा लग रहा है वो चीफ लाइब्रेरियन है and he is reading a book in his library. Somebody has written this account that on 21st June the sticks were not casting the shadow, the pillars were not casting a shadow, and in the well there was no reflection. The sun was directly we could have looked directly deep down into the well and there was no shadow at all. So for a common person like you and me, this can be a very normal observation. We could ignore this कि ठीक है होता है हो सकता है, it's a mundane day-to-day activity. But this person, he thinks, there is something in it, and he tries to explore this. And when he explores, he first make this comparison because on this place people are saying that there is no shadow, but he do the same experiment on 21st June where he is staying, which is about 800 kilometers towards the north of that place, and there he is saying कि यहाँ तो shadow बन रहा है, वहाँ shadow नहीं है, यहाँ shadow है. तो the first conclusion can be कि people are lying there. वहां के लोग झूठ बोल रहे होंगे, वहां भी शैडो बनता होगा, पर किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी होगी कि आज के दिन शैडो नहीं बनता है. बट देन Eratosthenes is saying कि why somebody will lie about such trivial matter, मतलब ऐसा बोलने से छोटी सी बात से किसी को कोई फायदा तो होने वाला नहीं, तो क्यों कोई झूठ बोलेगा. So what he did then is a masterpiece. Like कैसे वो सोचता है, देखो. Trivial matter. Eratosthenes asked himself how it could be that at the same moment a stick in Syene would cast no shadow and a stick in Alexandria, 800 kilometers to the north, would cast a very definite shadow. Here's a map of ancient Egypt. I've inserted two sticks or obelisks, one up here in Alexandria and one down here in Syene. Now, if at a certain moment each stick casts no shadow at all, that's perfectly easy to understand, provided the Earth is flat. If the shadow at Syene is at a certain length, and the shadow at Alexandria is the same length, that also makes sense on a flat Earth. But how could it be, Eratosthenes asked, that at the same instant there was no shadow at Syene and a very substantial shadow at Alexandria? The only answer was that the surface of the Earth is curved. Not only that, but the greater the curvature, the bigger the difference in the lengths of the shadows. The sun is so far away that its rays are parallel when they reach the Earth. Sticks at different angles to the sun's rays will cast shadows at different lengths. For the observed difference in these shadow lengths, the distance between Alexandria and Syene had to be about 7 degrees along the surface of the Earth. By that I mean
If you imagine these sticks extending all the way down to the center of the Earth, they would there intersect at an angle of about 7 degrees. Well, 7 degrees is something like a 50th of the full circumference of the Earth, 360 degrees. Eratosthenes knew the distance between Alexandria and Syene. He knew it was 800 kilometers. Why? Because he hired a man to pace out the entire distance so that he could perform the calculation I'm talking about. Now, 800 kilometers times 50 is 40,000 kilometers. So that must be the circumference of the Earth. That's how far it is to go once around the Earth. That's the right answer. Eratosthenes' only tools were sticks, eyes, feet, and brains, plus a zest for experiment. With those tools, he correctly deduced the circumference of the Earth to high precision, with an error of only a few percent. That's pretty good figuring for 2,200 years ago. कैसा लगा? कुछ बात समझ में आई? So just with sticks, legs, hand, foot, and brain, this person was able to measure the curvature of the Earth just by simple experiment. Some of you, I know, may not have yet be able to understand कि क्या कर रहा है ये, but थोड़ा कोशिश करो तो समझ में आ जाएगी बात. बहुत ही आसान है. तो shape of Earth लिखो. Evidences in support of evidence to support that Earth is spherical. Evidence to support हाँ, ये जो वीडियो है प्रत्युष, कॉस्मोस नाम का एक सीरियल आता है बीबीसी पे. आजकल उसको नील डिग्रास करता है, उस टाइम पे कार्ल सेगन करता था. तो that has been renewed. तो कॉस्मोस पूरा जो वेब सीरीज है वो या सीरियल है उसका एक पार्ट है. 80s के आसपास शायद आता होगा. नॉट वेरी श्योर अबाउट द टाइम लाइन ऑफ द शो, लेकिन वीडियो उसी का पार्ट है. कॉस्मोस 1 सर्च करोगे तो यू कैन गेट द होल. जिनको इंटरेस्ट है वो कॉस्मोस 2 देख सकते हैं. दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड विथ बेटर ग्राफिक्स. गेम ऑफ थ्रोन्स की जो टीम थी ना, उसने कॉस्मोस का पूरा ग्राफिक्स इस पर डिजाइन किया है. हाँ, the evidence to support that Earth is spherical. क्या क्या एविडेंस है? सबसे पहला एविडेंस है सरकम नेविगेशन. पहला लिखो सरकम नेविगेशन. फर्डिनांड मैगलान ने 1519 से 1522 तक पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाया और उसने कहा कि भाई कन्विंसिंगली कि या कोई ऐसा वो नहीं है कि इट्स नॉट फ्लैट, वी आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन फ्रॉम द अर्थ. द फर्स्ट एविडेंस
इज सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा लिया, बोला कि अर्थ गोल है। दूसरा लिखो, सर्कुलर होराइजन। इसको समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखो और सर्कुलर होराइजन को समझो। देखो, दिस phenomena we have seen in our life. The higher we go, the more area we can see. हमारा होराइजन जो है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, तुम सेकंड फ्लोर पे होगे, तुम्हें कम दूर दिखेगा। 20th फ्लोर पे चले जाओगे और ज्यादा दिखेगा। बुर्ज खलीफा पे चले जाओगे, यू कैन सी अ लॉट मोर। सो इसको कहते हैं फील्ड ऑफ होराइजन। लेकिन अगर देखो, अगर हम फ्लैट सरफेस पे होते, तो वेदर यू आर ऑन पॉइंट ऑन सेकंड फ्लोर और यू आर ऑन 20th फ्लोर, योर होराइजन वुड हैव बीन सेम। ऊपर जाने से हमें ज्यादा एरिया नहीं दिखता, ठीक है। तो इस ये एक बहुत अच्छा एविडेंस है। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस, यू कैन ड्रॉ। लिखना है तो लिख सकते हो, द सर्कुलर होराइजन। ये लाइन लिख दो, सर्कुलर होराइजन वाइडन्स विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड and could only be seen on a spherical body. Circular horizon widens with increasing altitude. अगर फ्लैट होता तो ऐसा नहीं होता। थर्ड लिखो, या फिर हाईलाइट कर लो अपने बुक में, शिप्स विजिबिलिटी। देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ सी शोर, तुम ऐसे किनारे सी कोस्ट पे खड़े हो, एंड if you watch a ship approaching, so if the earth is flat, you can see the whole ship इन वन गो। जैसे तुम अपना टेलीस्कोप, जो भी है तुम्हारे पास, टेलीस्कोप लगाओगे, यू कैन सी द होल शिप कमिंग टुवर्ड्स यू। बट इफ दिस द सरफेस इज बेंट, तो क्या होगा? फर्स्ट यू विल सी द मास्ट ऑफ द शिप, देन इट विल बी स्लोली appear completely to you. The visibility of the ship also suggests that Earth is horizontal. The Earth is spherical. ये शायद हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। आई थिंक दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट लिखो, सनरेज एंड सनसेट। सनरेज एंड सनसेट। देखो, अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या होता? सन राइज सब जगह पे एक साथ होता और सनसेट सब जगह पे एक साथ हो जाता। if if this is if this is a flat earth, so whenever I will switch on the light, all the earth will have day at the same time, and when I will switch off, it will be dark. और जैसे ऊपर लाइट है, नीचे डार्क है, हमेशा ऐसा ही रहता। But we see from our observation that it doesn't happen that all the parts of the earth are lit or dark at the same time. कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात है, and this is only possible when the earth is spherical or it has a curvature. So some part will be lit, some part will be dark. So sunset and sunrise. Next point है eclipse. Next is eclipse. जब भी लूनर इक्लिप्स होता है, we will be reading about eclipse in detail, but we have seen eclipses. Eclipse में क्या होता है? Earth casts its shadow on moon. Earth जो है वो मून पे अपना एक शैडो कास्ट करता है। हम देखते हैं कि वो जो शैडो होता है हमेशा एक सर्कुलर शेप में होता है।
So Earth is circular, that's why it is casting a circular shadow. Eclipse इन्हें नहीं समझ में आता है, don't bother, we will be discussing this in detail. So eclipse हो गया फिफ्थ रीजन. सिक्स रीजन कहते हैं कि अदर प्लेनेटरी बॉडीज, हम दूसरे प्लेनेटरी बॉडीज को देख रहे हैं वो सब स्फेरिकल है, तो अर्थ शुड ऑल्सो बी स्फेरिकल. सेवेंथ पॉइंट कह रहे हैं कि व्हेन इंजीनियर्स try to upright poles in a horizontal line, तो वो हमेशा ये देखते हैं कि जो हाइट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. अगर ये यूनिफॉर्म लैंड होता, हम इस पे अगर पोल्स लगाएंगे, सो द टॉप ऑफ दिस पोल्स शुड बी सेम. बट ऐसा होता नहीं है. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम द सेंट्रल pole will be the highest and the other poles will be at a lower height than that. तो ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड. और फाइनली अब तो हमारे पास वी हैव एरियल फोटोग्राफ्स व्हिच प्रूव्स दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट. ठीक है, ये क्लियर है. आगे बढ़े अर्थ मूवमेंट पे. नाउ दिस convincingly prove that earth is spherical. Earth's movement, तो दो तरीके का मूवमेंट है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. लिखो पहले रोटेशन. movement of earth on its axis is called rotation. I think this is easily understandable, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो. movement of earth on its axis is called rotation. और एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन. ऐसा कुछ है नहीं एज सच. ऐसा नहीं कि यू विल गो तो यू विल फाइंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू द अर्थ, बट वी हैव इमेजिन कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड अ लाइन, तो उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. अगेन आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. तो रोटेशन हो गया. हेडिंग दो ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन, कोई बताएगा मुझे क्या होता है ऑर्बिटल प्लेन? दोज हु हैव डन एनसीईआरटी क्लासेस, व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? देखो, the plane in which Earth orbits around the sun. The plane in which Earth orbits around the sun. The plane in which Earth orbits around the sun. All the planets in the solar system, they are situated in a plane. मतलब यहां पे अगर सन है तो ऐसा नहीं है कि मरकरी यहाँ पे है, विनस यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है. ऑल ऑफ देम आर इन अ प्लेन. मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, ये सब एक प्लेन में है, एक लाइन में. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. शायद हमने एनसीईआरटी क्लासेस में डिस्कस भी किया कि व्हाई दे आर इन इन अ प्लेन. कोई बताएगा मुझे व्हाई ऑल दिस प्लैनेट्स आर इन सेम प्लेन? ऊपर नीचे क्यों नहीं है ये? किसी को आइडिया है?
देखो, ये तो पूरा स्पेस है। प्लैनेट्स तो कहीं भी रोटेट कर सकते थे, बट वो इस तरीके से रोटेट करते हैं, रोटेट इन सच अ वे एज इफ दे आर केप्ट ऑन अ टेबल. Sun is in the middle of that table or that plate, and all other planets are rotating on the same plate. But actually, there is no such plate. Earth could have been traveling like this on a different plane. Saturn could have been traveling in this below this plate. They could have rotated like this, इधर से जाके और ऐसा उल्टा भी कर सकता था. But all the planets are traveling or are rotating in the same plane. कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऐसा तिरछा नहीं रोटेट कर रहा है, कोई डायगोनल नहीं है. द रीजन इज कि हाउ अर्थ हैज इवॉल्व्ड और हाउ द सोलर सिस्टम हैज इवॉल्व्ड. देखो, इनिशियली क्या था, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स थे. दे वर रोटेटिंग इन ऑल डायरेक्शन. ये कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था. दे ऑल वर रोटेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड दे वर कोलाइडिंग विथ ईच अदर. तो ये इधर जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, दोनों कोलाइड करेंगे. बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन ऑफ दीज प्लैनेट्स, आफ्टर अ वाइल the kinetic energy, they lost their kinetic energy of these diagonal movements, up and down movement, or ultimately they get settled into a single plane. जो इधर उधर मूव कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा टकरा कर वो एक प्लेन में आके स्टेबल हो जाते हैं. और इसीलिए हम सारे प्लैनेट्स को देखते हैं कि दे आर रोटेटिंग इन अ प्लेन, और इसी प्लेन को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. ठीक है, तो दे विल बी रोटेटिंग लाइक दिस इन ऑर्बिटल प्लेन्स. ठीक है, तो the orbital plane is the plane in which Earth orbits around the sun. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ रोटेशन. देखो, ये सन है एंड दिस इज योर एंगल ऑफ, सॉरी, दिस इज योर ऑर्बिटल प्लेन, और ये है अर्थ. लेट्स सपोज कि वी आर वॉचिंग दिस फ्रॉम द टॉप. ये ऊपर जो यहां से जो लाइन निकल रही है, इमेजिन करो, जो स्क्रीन से जो लाइन निकल रही है, ये वाला पॉइंट नॉर्थ पोल है. ठीक है, इसको 3D में ऐसा इमेजिन करना है कि हम ऐसा ऊपर से देख रहे हैं अर्थ को रोटेट होते हुए. ये सन है, ये अर्थ है, एंड वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम द टॉप. ठीक है, इमेजिन करना है, नहीं करोगे गड़बड़ होगा. यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम द टॉप. सो अर्थ विल बी रोटेटिंग लाइक दिस अराउंड द सन. ठीक है, यहां पे जो हम एक्सिस ऑफ, अगर अर्थ का एक्सिस देखें तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि इट्स कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन एंड गोइंग इन द स्क्रीन. वो उसका एक्सिस है, और उसी के अराउंड ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस पे, और साथ ही रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से. तुम लिखो, पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं. द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द ऑर्बिटल प्लेन, the angle between the axis of rotation and the orbital plane is equal to 66 and half degree. The angle between the axis of rotation and the orbital plane is 66 and half degree. 66 and half degrees.
देखो, ये हम ऐसा टॉप से देख रहे थे। नाउ इमेजिन दैट वी आर वॉचिंग द सन फ्रॉम द साइड। अब सोचो कि यहां से तुम देख रहे हो, यहां तुम्हारी आंखें हैं, एंड यू आर वॉचिंग द सन एंड द अर्थ फ्रॉम दिस साइड। तो अब क्या दिखेगा? दिस इज सन, नाउ वी कैन सी दिस पार्ट ऑफ द सन, एंड दिस इज अर्थ, एंड दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। अब क्या लिखते हैं? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 66.5 डिग्री। मतलब अर्थ जो है, ये जो एक्सिस है वो ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरीके से ये वाला लाइन नहीं है, वो ऐसा टिल्ट हो गया है। टिल्ट हो गई, 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ द ऑर्बिटल प्लेन। ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, इसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ इसके अराउंड रोटेट करेगा, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, और ये 66.5 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ एंगल एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अगर यहां पे 66.5 है तो दिस विल बी 23.5, 23.5 डिग्रीज। तो इसीलिए कहते हैं कि अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्रीज फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। इसको रहना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन ये सीधा है नहीं। क्या हुआ है? 23.5 डिग्रीज अपने नॉर्मल पोजीशन से ये झुक गया है। सो दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द एनसीईआरटी क्लासेस एज वेल। इसको बहुत उलट उलट के पूछते हैं। इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, लेकिन ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बना रहा है वो 66.5 डिग्रीज का बना रहा है। जो इसको नॉर्मली 90 डिग्रीज का बनाना चाहिए था, वो घट के 66 डिग्रीज का रह गया है। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्थ कैसे रोटेट करता है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। लिख लो इसको। अर्थ रोटेट्स इन इट्स ऑर्बिट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Means if the clock is rotating like this, earth will be rotating like this. तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। इफ यू विल लुक इट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तुम्हें दिखेगा कि अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस। नेक्स्ट लिखो स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन कौन सा लाइन रिपीट करना है अदिति? अर्थ रोटेट्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्थ रोटेट्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखो स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगा? All the points on the earth will be rotating at the same speed or different speeds?
all the points on Earth rotate in the same speed or different speeds? Different speeds. फंस गए. लिखो. The speed of rotation is maximum along the equator. The speed of rotation is maximum along the equator. Which is equal to about 1650 kilometers per hour. Speed क्या है? 1650 kilometers per hour का speed of rotation है. It decreases as we move from equator to pole. हम जैसे equator to pole की तरफ जाते हैं, it starts decreasing. It decreases from equator to pole. क्यों ऐसा होगा? देखो, कोरियोलिस फोर्स जब मैंने पढ़ाया होगा तो आई हैव एक्सप्लेन दिस, बट this is your earth. It takes about 24 hours for earth to complete one rotation. Means if you are standing at this point and if you start traveling, it will take 24 hours for you to come back to this position again. So if you are standing at equator, in 24 hours, you will cover this whole distance, this whole circumference of the earth, you will travel. कितना करोगे? 2 pi r, where r is the radius of the earth. तो इतना distance तुम 24 hours में travel करोगे. But if you are here, you will in 24 hours you will travel only this much distance, which is much less than the equator. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम इज सेम 24 आवर्स, बट डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो स्पीड कम होता जाएगा. तो हाइयर यू विल गो, स्पीड विल बी लोअर. जब तुम अगर पोल पे खड़े हो या एकदम एक्सिस पे खड़े हो तो यू आर नॉट ट्रेवलिंग एट ऑल, यू विल जस्ट बी स्पिनिंग एट वन पॉइंट. तुम कुछ डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हो, बिकॉज इन 24 आवर्स यू विल जस्ट स्टक एट द सेम प्लेस. तो इसलिए इफ यू विल मूव टुवर्ड्स पोल्स, the speed of rotation will keep on decreasing. Clear है ये? Why speed of rotation will decrease? ठीक है, चलो. नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन. ये तो सबको पता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज रिवॉल्यूशन एंड इट हैपेंस इन अ elliptical orbit. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लिखो. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. अर्थ को लगता है 365 days and 5 hours. 365 days and 5 hours, 48 minutes to travel once around the sun. Direction of revolution भी anti-clockwise है. Direction of revolution is also anti-clockwise.
थोड़ा सा बुक देख लिया जाए अब। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फेनोमेना ऑफ डे एंड नाइट। बहुत आसान है। When Earth rotates on its axis, only the portion of Earth's surface comes into the rays of the sun experience the daylight। जो सूरज की तरफ होगा उस पे सनरेज पड़ेगा, वहां पे डे लाइट आएगा, और जिधर सनरेज नहीं होगा दैट विल बी इन द डार्कनेस। तो ये तो बहुत आसान है डे एंड नाइट के फिनोमेना को समझना। तो ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। एक हेडिंग दो, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जीसी लियोंग ने काफी आसानी से, मतलब बहुत शॉर्टकट में इस टॉपिक को निपटा दिया है। दे हैव नॉट कवर्ड दिस इन डिटेल, लेकिन अपने को इतना समझना पड़ेगा थोड़ा सा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को। जनरली क्या होता है देखो, इफ अर्थ वुड नॉट हैव अर्थ, इफ द अर्थ इज नॉट टिल्टेड, अगर अर्थ टिल्ट नहीं हुआ होता तो यहां पे सन होता, तो दिस कंप्लीट हाफ पार्ट विच इज टुवर्ड्स द सन, यहाँ पे डे होता, एंड दिस कंप्लीट पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन, ये पूरा नाइट होता। ठीक है ना? लेकिन अर्थ क्या है, इट्स एक्चुअली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। तो टिल्ट के कारण क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज टिल्टेड लाइक दिस। एक मिनट, इसको मिटा दिया जाए। So because Earth is tilted, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि some part of the first half, इसका upper part जो है, it is away from the sunlight, so this will be in dark, क्योंकि ये सूरज के दूसरी तरफ है। And some part of this sphere which should have been in dark, this will be facing the sunlight, तो इधर जो होगा वो लाइट होगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में लिखो, अ सर्कल विच डिवाइड्स टू पोर्शंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में, अ सर्कल विच डिवाइड्स टू पोर्शंस, one which is receiving illumination and the other which is in dark। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में, अ सर्कल विच डिवाइड्स टू पोर्शंस, one which is receiving illumination and the other which is dark। एक टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं दे रहा हूं, उसको ड्रॉ कर लो, और इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, एक मिनट को। वेट ए सेकेंड, इसको ड्रॉ कर लो, फिर आज का छुट्टी।
ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये ड्रॉ करो। With this, we will end today's class. In the next class, I will be explaining this. क्या है ये? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है. This one, the table explains everything that you need to know about the rotation and the revolution and all the MCQs that you need to solve. Draw करके and then all of you can leave the class, and those who want to join from the next day, कल आके मैं थोड़ा सिलेबस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, टच संकेत was saying. और कल से the link will be shared with those who will get enrolled. Timing will be this one only, from 7:30. Optional batch, Shreya, option. We have started the enrollment for the optional batch. We will be starting it somewhere in October. So if you're interested, you can get enrolled. If you have any queries, you can text me on my number.
In NCERT batch test its series included पता नहीं सर स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। अरे ये कौन क्या क्या लिख के चला गया, एक मिनट रुक जाओ। इनका खुद का काम हो गया तो दूसरों का काम मुश्किल करके जा रहे हैं, ये तो बहुत ही ईर्ष्यालु लोग हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? यूपीएससी करने आ रहे हो, समाज सेवा करना है और चलो ठीक है एवरीवन, आई होप यू हैव रिटन इट। हो गया सबका? नहीं हुआ? हाँ ठीक है, चलो देन लेट्स एंड दिस क्लास एंड विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कल से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा